Hello and welcome to the Thinking Tree Toppers Talk Show. Today we have with us Gaurav Agarwal. He needs no introduction. He secured AIR1 in 2013 with economics optional. So today we'll be talking about economics optional, how he cracked this exam with particular things, how he strategized his preparation, and how he controlled the vastness of the syllabus. So Gaurav, welcome to the talk show. Thank you, sir. First of all, thank you for accepting our invitation and guiding the students, taking time from your busy schedule. That's really fortunate, those who are listening to you. My first question, Gaurav, is out of all the optional subjects available, what inspired you to choose economics as an optional subject in civil services examination? Well, I think it's because of the love for the subject. All right. I'd been exposed to economics for quite some time. Okay, so I had I was like mainly exposed to economics while doing MBA. I had done MBA in finance, but like as optional subjects and all, I always used to take economic subjects, right? So that gave me quite a bit of flavor of the subject. And then after MBA, I went to Hong Kong and I used to trade credit and currency and interest rates and all. So there I used to follow the markets very closely. I used to follow macroeconomy very closely. I used to follow government policies, central bank actions, the market, whatever is happening in markets and also there I was like quite exposed to economics. I developed quite a bit of understanding and love for the subject, and that is why when I came back to study for this take this exam, taking economics was the natural choice. I was good at it. That's really great. It means that interest is the most important thing in choosing optional. Definitely 100%. It's because while taking an optional, Sanath, like you really have to study it in deep. Okay, and like your answers have to reflect that sort of familiarity, that sort of knowledge in the subject, because your answers will be checked by professors of the subject. Right? So they are used to reading literature in a particular way in that particular subject, right? So you really have to come across as a scholar. So that is why the most important thing while selecting any option is your interest in it, how good you are in it. Yes. So, Gaurav, as you are aware, how important were the guidance and mentorship in your preparation for economics optional subject? And how did they help you to achieve the success in civil services examination? Because if you see the student's perspective, what advice would you give to the aspirants who are looking for the guidance and mentorship while preparing for this optional subject? Actually, Sanath, I think for this exam, not just for the optional subject, but for even for GS and other subjects and all, right? Yes. Most important thing is guidance only, because the syllabus is like huge. Okay, Yes. you really, it's not a class exam or it's not a college exam or anything, right? Where you have a particular book, you study from that book, you know that the questions will be asked from that only, and you have to answer in that particular manner only. It's not like that. It's an open sort of an exam. The syllabus is huge. You don't know what can be asked, from where it can be asked, right? So typically what happens is that students tend to get lost if they don't have any sort of a guidance, right? Students tend to like get lost in trying to cover everything. They don't know how much depth should be there in their coverage, how much what should be the scope of their coverage and all, Coverage, right? yes. So that really ends up taking a lot of time, and before you realize, a lot of valuable time is lost. And then Yes. suddenly you realize that okay, your preparation is not up to the mark. So that is why guidance is super important. Like you really need to know whether that is your destination, you should be traveling in this direction, and this is Yes. your end goal. And when I say guidance, I don't mean that whatever anybody else is telling you, right? I mean, the ultimate guidance can only come from previous year's question papers. And like when I say guidance, I actually uh, previous year's question papers, right? Because that is the ultimate standard you have to reach. See, Sarath, like in UPSC,
mostly they don't repeat questions as such, but the pattern is there, right? I mean, they repeat the pattern. Okay. Yes. So if you are if you are at the level where you are able to answer previous year's question papers, right, then you will be able to do well in current year Correct. as well. Yeah. And if you feel that like something is lacking while answering those previous year's question papers, then you know what to work on. So that is what I mean. And actually, like in my own case, Sanat, I was studying this subject, right? And after prelims, I realized that my preparation is really not up to that level. Until, after prelims, I had not seen the previous year's mains question papers for the optional. Okay. And then when I saw them, I was really, up for a very sort of a shock that the boss मेरी तो कुछ preparation है ही नहीं. Okay. Then I was not even able to understand the questions. जैसे for example, in paper one, Keynes theory and all, वो सारी पढ़ाएंगे आप. Okay. कि y is equal to c plus g plus I plus nx and all. Okay. Now, Keynes theory is actually sort of a general theory. कि पहले जो थी वो classical theory होती थी. And then, came the Keynes theory. Okay. Yes. Now, typically you would understand कि classical theory जो है, it is like a special case of the Keynes theory. कि Keynes theory यदि full employment level के ऊपर, Keynes theory actually boils down to classical theory, right? So, Keynes called his theory as the general theory. Yes. तो ये चीज थी. लेकिन जो क्वेश्चन मैंने देखा था यूपीएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कि कीन्स इज अ स्पेशल केस ऑफ द क्लासिकल थ्योरी. सो आई वाज लाइक टोटली dumbfounded. ये क्या हो गया? ओके. ऐसे ही कुछ मिल्टन फ्राइडमैन की जो मनी थ्योरी थी, उसके क्वेश्चंस आते थे, मेरे तो समझ ही नहीं आता था एक्चुअली कि पूछ क्या रहे. अपने को यदि पता हो कि पूछ क्या रहे तब तो अपन उसका आंसर करें. सो प्रिपरेशन, इवन दो बेसिक कांसेप्ट्स एंड ऑल कवर हो गए थे, बट प्रिपरेशन उस लेवल की थी ही नहीं. देन आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड ओके, लाइक देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्रिपेयरिंग फॉर जीएस एंड प्रिपेयरिंग फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट. एंड वो फंडामेंटल डिफरेंस ये कि ऑप्शनल के अंदर यू हैव टू बी अ सब्जेक्ट मास्टर. यस. ओके. कि आपके ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस हैं वो सेट कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं, आपके आंसर्स जो हैं वो चेक कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं, राइट. सो उस सब्जेक्ट के अंदर जो डिबेट्स चली हैं बिटवीन स्कॉलर्स, बड़े बड़े लोगों के बीच में जो डिबेट्स चलती हैं, वो डिबेट्स आपको पता होनी चाहिए, वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज आपको पता होने चाहिए. देन यू कैन टेक योर ओन स्टैंड एंड प्रेजेंट योर आर्गुमेंट्स एंड ऑल, राइट. सो फिर उसके बाद में मैंने जो है, उसके पहले तो मैंने सिर्फ कोचिंग में जो पढ़ाया था वही अटेंड किया था, बट उसके बाद में फिर जो एक्चुअली जो कॉलेज की टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह चलती हैं, जो स्कॉलर्स के डिबेट्स वगैरह होते हैं, ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल्स, ये सारी चीजें होती हैं, राइट. आई रियली टुक अप दोज थिंग्स. वहां जाके मेरे को पता लगा ओके, ये चीज जो बोल रहे हैं ये इस डिबेट से आई है, इस डिबेट के अंदर था. एंड दैट इज लाइक एन एंटायर, लाइक पूरे 5-10 साल ये डिबेट चला था इन इकोनॉमिक लिटरेचर. देन जाके जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है. ओके. सो दिस इज हाउ एक्चुअली ऑप्शन शुड बी प्रिपेयर्ड, एंड देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन जीएस एंड ऑप्शन. Because you have to not write like a generalist in GS, and you have to write like a specialist in it. So Gaurav, many students face this dilemma, like we are talking about GS and optional. So what to prepare first? How did you balance your preparation for GS papers and economics together? Or what was your priority? कि पहले मुझे optional खत्म करना है, फिर GS पढ़ना है, या साथ में करना है, या optional का कोई time limit लेके रखा था? मतलब how did you balance out that? Well, I would say Sanat कि इसमें तो ना, well, I guess it's a very individual kind of a thing कि क्या चीज किसके लिए वर्क करती है. ओके. और मैं तो सारी चीजें एक साथ पढ़ता था. आई मीन, वरना क्या होता है, लाइक एक ही चीज आप एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के लिए करते रहते हो, देन इट टेंड्स टू बिकम बोरिंग. We are not machines, right? We have not evolved to do repeated things repeatedly, iteration after iteration after iteration. We tend to get bored. So
मैं तो यही करता था कि थोड़े टाइम एक सब्जेक्ट पढ़ता था, उसके बाद थोड़े टाइम 2 घंटे बाद कुछ और, फिर 2 घंटे बाद कुछ और, तो इस तरीके से ही मैं Okay. करता रहता था। तो कोई सजेशन मतलब स्टूडेंट के लिए कि ऑब्वियसली योर प्रेफरेंस इज देयर, है ना? इफ यू आस्क मी, मेरा भी ये प्रेफरेंस है, 1 घंटा कुछ 2 घंटा कुछ फिर धीरे। बट एक स्टूडेंट को पहले क्या प्री और मेंस के पहले ऑप्शनल फिनिश कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस एग्जामिनेशन? वेल एक्चुअली ना, प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में 4-5 महीने का ही टाइम होता है, वेरी फ्रैंकली, हाँ। लाइक फॉर यस। प्रिपरेशन, नॉट इवन 5 मंथ्स, 5 मंथ अब तो एक्चुअली और लेस कम देन होता है दैट। सर, आई मीन 100 3 महीने डेज होते हैं, या। लास्ट का 1 महीना रिवीजन एंड ऑल उस सब में जाता है, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन कि आप प्रीलिम्स के कितना पहले आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। लेट्स से यू आर बिगिनिंग योर प्रिपरेशन well like 6 months before the prelims or 7-8 months before the prelims, then finish your option before that. फिनिश ऑप्शन, यस। बट आप प्रीलिम्स के यदि 2 महीने 3 महीने पहले आप प्रिपरेशन यदि स्टार्ट कर रहे हो, देन ऑब्वियसली यू विल नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ luxury of time. So it really depends on how much डिपेंड्स। time you have, but यस। as far as possible जितना जल्दी हो सकता है करो, because see I remember clearly, and I mean those are fond memories. इतना टाइम हो गया मेरे को अब इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर गए सनत, because generally nobody asks about optional. Okay, सही people बात। like typically जब भी कोई पूछता है जीएस एंड सर्विस ऑल एंड उसमें लाइफ, कौन। या। बट आई रिमेम्बर सनत, मैंने ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था, राइट, सो कम से कम आई वुड हैव रिवाइज्ड इट लाइक 5-6 बार रिवाइज किया होगा मैंने। ओके। एंड दैट्स द की। जब मैंने पहली बार किया था, जब पहली बार मैंने प्रिपेयर किया था, तो जस्ट इतना होता था कि जो चीज पढ़ी वो चीज समझ में आ गई। ओके। दूसरी बार करता था तब जो वो क्वेश्चंस जो होते थे, मैंने आपको बताया ना कि कीन्स स्पेशल केस, कीन्स जनरल यस। थ्योरी स्पेशल, और ये वो फलाने वहां का, तब वो क्वेश्चंस का कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता था, राइट? आई मीन दूसरी बार रिवाइज करने पे मेरे को रिकॉल रिटेन रहता था कि ओके ये हाँ। कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे होता था। तीसरी बार करने पे लाइक ये समझ में आया था कि ओके लाइक ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है, इसको इस हाँ। तरीके से प्रेजेंट करना है। सो 3 एक बार में तो जस्ट 3 बार रिवीजन के बाद में तो मैं इस लेवल पे पहुंचा था कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाऊं प्रॉपर्ली, सही बात। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाऊं प्रॉपर्ली, एंड फिर उसके बाद में यू बिकम बेटर एंड बेटर एट, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि ग्राफ्स आर सुपर इंपॉर्टेंट, जो डायग्राम्स एंड यस। चार्ट्स एंड ऑल होते हैं, राइट, दे आर सुपर इंपॉर्टेंट। यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इज नॉट अबाउट मैथ्स, यू डोंट यस। हैव टू लाइक पुट एनी बिट ऑफ मैथ्स, बट चार्ट्स एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जो चार्ट्स होते हैं ना, वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आपके वो चार्ट उतने इंग्रेन्ड होते चले जाते हैं, एंड क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत वो वाले चार्ट प्रॉपर्ली बना सकते हो। So that actually requires quite a bit of practice, because some प्रैक्टिस, of those या। charts are not trivial charts. I mean, ट्रू। उनमें काफी सारी चीजें अंदर घुस घुस के होती हैं, होती है। बट आप यदि प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस है तब आप फिर इजीली वो चीजें कर पाते हैं। एंड आपके क्वेश्चंस जो होते हैं, राइट, आई मीन दे आर मोस्टली दीज चार्ट बेस्ड, जितने ज्यादा आप डायग्राम्स एंड फिगर्स और इस सब से एक्सप्लेन कर सकते हो, यू शुड डू दैट। सो गौरव, जैसा कि आपने बताया कि ये सब्जेक्ट एप्लीकेबिलिटी है, मैथ्स तो उसमें ना के बराबर है, ग्राफ है, थ्योरी है, तो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बेसिस पे देयर आर टू क्वेश्चंस दैट कम्स इन द स्टूडेंट्स माइंड, कि पहला चीज है हाउ शुड वन अप्रोच द सब्जेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, और सेकेंड इज did you also part the subject in a manageable chunks के मैं ये पहले खत्म कर लूंगा या 2 महीने में मुझे इतना करना है? And what was your approach? Like it's like going towards the full syllabus, or it's like micro, then macro, or something like that? तो इसमें शायद लाइक मोस्ट ऑफ दीज पार्ट्स, राइट, सो इफ यू लुक एट द सिलेबस, Yes. स्पेशली जैसे आप पेपर 1 का देखते हो, राइट, सो इट हाँ। इज broken into distinct well separated components, कि आपका एक माइक्रो है, माइक्रो Yes. के फिर देन मैक्रो है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स है, ऑलराइट, एंड देन पेपर 2 है, पेपर 2 के अंदर प्री और इंडिपेंडेंस है, post independence. प्री लिबरलाइजेशन है, पोस्ट लिबरलाइजेशन है। सो फॉर्चुनेटली all these are quite separate, quite watertight, I mean interactions होते हैं, linkages होते हैं, Okay. बट आप अलग से प्रिपेयर कर सकते हो। सो जैसा मैंने आपको बताया ना कि मैं फिर पैरेलली करता था, राइट, 2 घंटे ये कर लिया, 2 घंटे Yes. वो कर लिया, 2 घंटे वो कर लिया,
उस तरीके से आई यूज टू डू। एंड इसमें like the important thing I think in optional is कि you should follow the right sort of books, क्योंकि Yes. आपकी यदि वो उस लेवल पे हो ही नहीं ना, ओके इट्स नॉट जीएस, आप यदि उस लेवल पे हो ही नहीं तो आप कितना भी पढ़ते रहो आप उस लेवल पे जा ही नहीं पाओगे। जा ही नहीं पाओगे, सही बात। सो वो यूपीएससी के क्वेश्चंस इस लेवल के आते हैं, आपको उस लेवल की बुक्स पढ़नी होंगी, टेक्स्ट बुक्स पढ़नी होंगी आपको। दैट आई थिंक इज सुपर इम्पोर्टेंट। एंड इनिशियली तो एक्चुअली इट वाज वेरी डिफिकल्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो पता भी नहीं होता था कौन सी बुक से आएंगे, लाइक एक्चुअली इस सब्जेक्ट के अंदर थोड़ी लाइक सर्टेन वेल डेवलप्ड सब्जेक्ट्स, राइट, पबएड हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपको क्या पढ़ना, बट इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉब्ली उतना क्लियर तरीके से वो नहीं है, बुक लिस्ट एंड ऑल किस चीज के लिए क्या करना है। बट एक बार जब वो राइट बुक्स पता लगी, ओके देन कंसोलिडेशन एक्चुअली हाँ वो फिर चीज हो गई। एंड फिर लाइक एटलीस्ट मतलब मेरे सिलेक्शन के बाद में मैंने जो ब्लॉग लिखा था उसके अंदर ये सारी जो भी मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी थी वो लिखी हुई थी। So for the student, those who want to read the blog, you can find the link in the description. So Gaurav, next question is, after we finish the syllabus, the most challenging part starts, because you yourself will not go represent in front of UPSC, your copy will go. So it comes answer writing. How important is answer writing practice for economics optional, and how did you improve your answer writing skills? When did you start? Oh, I mean, answer writing is super important. Yes. Okay. And the reason is कि जो लोग आपका आंसर चेक कर रहे हैं दे आर इकोनॉमिक्स प्रोफेसर्स। वो लोग पिछले 15-20 सालों से एक पर्टिकुलर तरीके से सारा की सारा सब्जेक्ट का लिटरेचर पढ़ते हैं, वो उसी तरीके से लिखते हैं, राइट। तो आपको उस क्वालिटी उस लेवल की चीजें लिखनी होगी। नाउ इसके लिए अब वो किस तरीके से चीजें पढ़ते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, राइट। आई मीन आप जब उनके रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, इसमें जैसे आई टेल यू EPW वाज अ वेरी हैंडी रिसोर्स। आई थिंक EPW व्हाटएवर बी इट्स लीनिंग्स, राइट। आई मीन अच्छा इंडिया के अंदर इकोनॉमिक स्पेस के अंदर देयर इज ओनली लेफ्ट और लेफ्ट ऑफ लेफ्ट और लेफ्ट ऑफ लेफ्ट ऑफ लेफ्ट व्हाटएवर, राइट। आई मीन काफी जो है वो लेफ्ट लीनिंग स्पेस है इकोनॉमिक्स का, बट व्हाटएवर इट इज, आई मीन डज नॉट मैटर। जो EPW है, आई थिंक इंडिया के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर इट इज द बेस्ट ओके। एंड उसके जो पेपर्स होते हैं वो वाली जो क्वालिटी होती है, जब आप उन पेपर्स को पढ़ेंगे, राइट। आई मीन एक के बाद एक पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, उन पेपर्स से अपने नोट्स बनाएंगे, नोट्स ऑगमेंट करेंगे, उन पेपर्स के अंदर क्या डिस्कोर्स चल रहा है, क्या डिबेट्स चल रहे हैं, क्या डिस्कशंस चल रहे हैं, वो सारी चीजें आप पढ़ के जब नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा कि सबकॉन्शियसली ना आपका थॉट प्रोसेस, आपका वे ऑफ राइटिंग, आपका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, वो चीजें भी वैसी होती चली जाएंगी। ओके, गॉट इट। एंड दैट इज द थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जो आपके आंसर्स चेक कर रहे हैं उनको भी वैसे ही देखने की आदत है। ओके, सो दैट इज व्हाई बजाय इसके कि आप किसी और का डिस्टिल्ड वर्जन पढ़ें, ओके, दैट दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। जैसे आई मीन फॉर एग्जांपल पॉवर्टी था, राइट, मेजरिंग पॉवर्टी एंड ऑल। पॉवर्टी के ऊपर बहुत लंबे डिबेट्स चले। आई मीन लकड़ वाला कमेटी से लेके तेंदुलकर, रंगराजन होती थी, फिर अमर्त्य सेन एंड जॉन द्राजे वाली अप्रोच होती थी, फिर एक टाइम पे भगवती एंड सेन वाले डिबेट्स चलते थे, फिर ये MPI वाले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, फिर ये हंगर इंडेक्स, ऑल दीस थिंग्स, राइट। आई मीन बड़े डिबेट्स चले, बड़े। ओके, तो ये डिबेट्स क्या है कि ये जो नोटेड इकोनॉमिस्ट होते हैं, ये जब रिसर्च पेपर्स लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, उनके अंदर ये सारे के सारे डिबेट्स के ऊपर बात करते हैं। अब क्या है कि एक तो है कि आप वो पेपर पढ़ो, तो वो पेपर जब आप पढ़ोगे तो यू विल नो हाउ इट इज रिटन, किस तरीके से वो लिखते हैं, एंड आपका स्टाइल भी वैसा होता चला जाएगा। और दूसरा ये कि आप ये उसका कोई डिस्टिल्ड वर्जन पढ़ो तो यू विल नेवर गेट टू नो कि एक्चुअल में ये लोग कैसे लिखते हैं, right? So you will not have that sort of a yardstick. Yes. तो इसलिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दोस रिसर्च पेपर्स, उससे आपकी आंसर राइटिंग बेटर होती है। देन एज आई सेड, चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड चार्ट्स आपके प्रैक्टिस से आते हैं। ओके, ये कुछ चीजें आपको क्या कहानी लिखनी होती है इकोनॉमिक्स के आंसर्स में। यू हैव टू लाइक राइट अ स्टोरी। ओके, जैसे आप मूवी देखते हैं
मूवी के अंदर आपके लाइक सिंपली अच्छे एक्टर्स वगैरह को रखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, True. अच्छा एक आपका Content is गाना रखना इज important. नॉट इम्पोर्टेंट, सिर्फ अच्छी स्टोरी इज नॉट इम्पोर्टेंट, सिर्फ अच्छा डायलॉग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, सिर्फ अच्छा डायरेक्शन आर नॉट इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग हैज टू फॉल इन प्लेस, राइट? सेम थिंग इज हियर। और इसमें भी लाइक वन पर्टिकुलर थिंग इज स्टैटिस्टिक्स, ओके, कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं हाउ इम्पोर्टेंट दे आर। Yes. सो उनकी इंपॉर्टेंस होती है इन द सेंस कि दे शुड बी यूज्ड टू पावरफुली सप्लीमेंट योर आर्गुमेंट। Yes. ओके, Indeed. कि जैसे आप ये कह रहे हो कि फलाना पीरियड के बाद में जैसे लिबरलाइजेशन के बाद में या व्हाटएवर के बाद में इंटरस्टेट डिस्पैरिटी बढ़ी है मान लो पर कैपिटा, राइट? तो देन यदि आप जो भले एग्जैक्ट प्रिसाइज फिगर्स ना दो, बट इफ यू कैन से कि ओके पिछले 10 सालों के अंदर झारखंड एंड छत्तीसगढ़ या मे बी झारखंड इज लैगिंग बिहाइंड फलाना अदर स्टेट या एक्स स्टेट इज लैगिंग बिहाइंड वाई स्टेट, राइट? एंड इट इज ऑलरेडी एट अ पर कैपिटा लेवल इट्स लोअर, देन इट विल शो एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस। ओके, तो ये थोड़ी बहुत चीजें आप यदि डाल सकते हो तो इट पावरफुली एक्चुअली सप्लीमेंट्स, सब्सटैंशिएट कर देता है, आंसर को वेटेज बढ़ा देता है। यही तरीका है जिस तरीके से वो लोग लिखते हैं, जिस तरह से जो है उनको पढ़ने की आदत है, पढ़ने की आदत है। सही बात है। अब बिना डेटा फैक्ट के इफ यू आर जस्ट सेइंग इट्स लाइक अ वर्ड assumption और मे बी एनीथिंग, बट जस्ट टू इट डज नॉट मीन कि आप सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही डालते रहो चाहे उसकी कोई रेलेवेंस हो चाहे नहीं, बट इट शुड बी यूज्ड टू ऑगमेंट योर आर्गुमेंट। So my last two quick questions, Gaurav, before we end this. One is how important current affairs in economics option. We all know that it is very vital, but how important in studying and incorporating in the answer, even if the questions are not asking directly current affairs. And the second is these current affairs or economics optional related. Will a candidate expect some kind of questions in interview as well? Okay, so I'll answer the first question first. Sanat, in economics, right? Yes. जो आपके इकोनॉमिक्स नंबर जो फिगर्स होते हैं, राइट, नंबर्स होते हैं, ये हर अपडेट होते रहते हैं ना, इवन इफ द क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्टली आस्किंग, ओके, आई मीन जैसे द क्वेश्चन आया आपके इंडिया की ट्रेड बैलेंस पे आया, ओके, नाउ आज से 3 साल पहले 2 साल पहले इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स, इंडिया की ट्रेड बास्केट का कॉम्पोजिशन, ये सारी चीजें काफी डिफरेंट होती थी, आज की तारीख में काफी डिफरेंट हो गई हैं। ओके, सो फॉर इंस्टेंस लेट्स से रशिया से हमारे ऑयल इंपोर्ट्स काफी बढ़ गए, राइट? पहले हमारा लार्जेस्ट डेफिसिट चाइना के साथ चला करता था, अब हमारा जो है अब हमारा रशिया के साथ डेफिसिट सडनली बलून अप हो गया है। ओके, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो एक्सपोर्ट्स हैं, मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स हैं, और वो सडनली काफी बढ़ गए, राइट ना? वो क्यों बढ़े, क्या बढ़े? तो क्वेश्चन कभी ये नहीं पूछेगा कि, पूछ सकता है बट काफी रेयरली पूछेगा कि जो लेटेस्ट नंबर्स आए उसके ऊपर कमेंट करो, ओके। बट मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आता है आपका कि इंडिया का जो ट्रेड बास्केट है, ओके, वो आपके लेबर, इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है वो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स नहीं है, इट हैज फेल्ड समहाउ, ये वो प्लान दिमाग का कुछ आता है, यस। देन आपको इंडिया का जो ट्रेड बास्केट है उसके करंट पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके जो है कौन से उसके अंदर लेबर इंटेंसिव है, कौन से कैपिटल इंटेंसिव है, वो पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि फिर लेबर इंटेंसिव यदि नहीं है, कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, ओके। कि फॉर एग्जांपल हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो ये मोबाइल वाले जो एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं तो क्यों बढ़े हैं, हमारी PLI स्कीम आई है, हमारे जो है यहाँ पे हमने इंसेंटिवाइज किया है कि आप बजाय इंपोर्ट करने के यहीं पे फैक्ट्री सेटअप करो, ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो यू नीड टू नो दैट एंटायर स्टोरी। एक बार आपको पूरी कहानी यदि पता है, देन आप, मैंने कहा ना कि फिर आपने सडनली एक ही नंबर डाल दिया मान लीजिए, देन इट पावरफुली सप्लीमेंट्स योर आंसर, ओके। तो एक पूरी कहानी पता होनी चाहिए। सो इकोनॉमी इज अ स्टोरी मैन, इट्स अ स्टोरी, ओके। आपको पूरी कहानी पता होनी चाहिए, उसके इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स आपको पता होने चाहिए, राइट। आई मीन जैसे जो एपिक्स है, राइट, आई मीन रामायण महाभारत है, सब पूरी एक कहानी है, फिर उसके अंदर आपके इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स चलते थे, राइट। तो आपको सिमिलरली पूरी एक कहानी पता होनी चाहिए इंडियन इकोनॉमी की, एंड उसके बाद में इंडिविजुअल सारे उसके कंपोनेंट्स के बारे में, देन वो डेप्थ के अंदर आपको पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू इंटरव्यू, अगेन क्या होता है, इकोनॉमिक्स इज अ वेरी जनरल सब्जेक्ट,
Yes. Okay, everybody has some sort of an opinion about economy or various aspects related to economy. तो इंटरव्यू के अंदर, so if your DAF speaks, shouts about economics, right, then आपसे इकोनॉमी के सवाल पूछे ही जाएंगे. नाउ आपको इंटरव्यू के अंदर क्या है कि आपके 5-6 लोग वो होते हैं, राइट, इंटरव्यू ले रहे होते हैं, दे आर नॉट प्रोफेसर्स. आपके जो ऐसा नहीं है, आपके इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के आंसर्स इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर चेक कर रहे हैं, बट इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो 5 लोग तो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर नहीं है, मे बी कोई एक होगा मैक्सिमम, राइट. तो इसलिए वहां पे आपको इंटरव्यू के अंदर इस ट्रैप से बचना हो चाहिए. इन द ऑप्शनल यू कैन राइट लाइक एन इकोनॉमिस्ट. इन द इंटरव्यू आपको एक जर्नलिस्ट टाइप से आंसर देने चाहिए. वहां पे फिर ये थ्योरम्स और ये वो प्लान का ज्यादा जार्गन वगैरह नहीं चाहिए, राइट, बिकॉज सामने वालों को उतने इंडिया पता ही नहीं होगा. दे विल बी टर्न्ड ऑफ एंड दे विल स्टार्ट आस्किंग अबाउट समथिंग एल्स. आपको इंटरेस्टिंग चीजें बोलनी होंगी, ऐसी चीजें जहां पे आप उनको सब्सिक्वेंट लीड्स दे रहे हैं. ओके, लाइक ये चीज आपने आंसर दिया, उस रिस्पॉन्स से वो कोई और क्वेश्चन फर्दर उठाए, तो जो कॉमन पार्लेंस में जो इकोनॉमिक्स वाली टॉक होती है वो होती है इंटरव्यू के अंदर. इंटरव्यू के अंदर कोई आपकी थ्योरी, हैरेट, डोमर मॉडल और ये वो फ्लैन का ये सारी चीजें नहीं होंगी, है ना. इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि ओके, अब जैसे कल या आज जो है इन्फ्लेशन का प्रिंट आया इंडिया का 4.7% इन्फ्लेशन, राइट. सो इन्फ्लेशन इज वेल विद इन द जो आरबीआई का बैंक 6%, राइट. तो और आपको ध्यान हो तो आरबीआई ने पिछली जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसके अंदर पॉज किया था, जबकि ग्लोबली सारी सेंट्रल बैंक्स वगैरह सब जो है कर रही थी. एंड आरबीआई सेड इट्स नॉट अ पिवट, इट्स अ पॉज. एंड द फर्दर जो रेट एक्शन है दैट इन्फ्लेशन नंबर्स कैसे आते हैं. अब इन्फ्लेशन हमारा कूल ऑफ हो गया. नाउ आपको ये पता होना चाहिए जो कूल ऑफ हुआ है वेदर दिस थिंग इज सस्टेनेबल या सिर्फ ये सीजनल है. यदि सस्टेनेबल है तो ओके, नाउ यू आर श्योर कि ओके अब आरबीआई रेट हाइक नहीं करेगा. यदि ये सिर्फ सीजनल है या कोई टेम्परेरी ब्लिप, सीजनल इफेक्ट या सिक्लिकल इफेक्ट वगैरह ये सारे जो होते हैं उसकी वजह से आया, बेस इफेक्ट की वजह से आया, एंड दिस थिंग माइट गेट रिवर्स इन कमिंग मंथ्स, देन यू नो कि नहीं, अभी आरबीआई हैज टू रिमेन ऑन वॉच. ओके, तब ये जो चीजें होती है ना, ये आपकी कॉमन टॉक के अंदर अंडरस्टैंडिंग, या कॉमन अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्टिंग चीजें होती है. ये सारी चीजों के बारे में हर कोई जानना चाहेगा. अभी जैसे मैंने जब ये कहा, आई एम क्वाइट श्योर कि जो सुन रहा होगा वो जानना चाहेगा, अरे यार ये क्या है, कि मतलब ये 4.7 whether it is structural or this sort of some कोई टेम्परेरी सी ब्लिप है. एज ऑफ नाउ आई डोंट नो. अभी तो मैंने सिर्फ 2-1 घंटे पहले जस्ट ये नंबर ही देखा था. प्रॉब्ली 2-3 दिन में पढ़ के पता लगेगा, बट इंटरव्यू की तैयारी ऐसे होती है. ऐसे ओके, और ऑप्शनल की तैयारी होती है कि आप उसके अंदर एकदम जो है घुस जाएंगे. वहां फ्राइडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन और बाकी सारी कीज की थ्योरी और ये वो फ्लाट का ये सारी चीजें आप कहेंगे. So that is actually the big difference. That is it. Yeah. Thank you so much, Gaurav, for taking out time and guiding all the students. मुझे पता है बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा, and from the students' perspective also, I'm very thankful for your time. Any last word, anything you would like to share before we close? Well, I mean, just one thing particular to economics option, right? Economics option क्या है, काफी 0-1 टाइप्स का सब्जेक्ट है. So आपका फोकस एक्चुअली जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उस पे लाने पे होना चाहिए. ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहां आप एवरेज क्लैरिटी के साथ कर लो. I mean, you need to be on the other side of the river. Okay, that is the only way to practice. Thank you so much once again, Gaurav, and I wish you all the best for your future endeavor. And we would like to have more officers like you so that our company can become 10 trillion, 20 trillion very much in the near future and will become superpower in this one. Thank you so much, Gaurav. Cool. Thank you. Thank you so much. Bye, Sanat. Have a good day.